হ্যালো এভরিওয়ান, তো দেখতে পাচ্ছ চলে এসেছি সুকান্ত সদনে। তো আজকে হচ্ছে 16ই অক্টোবর স্পাইন ডে সেলিব্রেট হবে, আর আমাদের মধ্যে আসছেন ডক্টর আশিস কুমার শ্রীবাস্তব স্যার। তো চলো, আজকে খুব মজা হবে। सही उम्र है। एक दिन किस्मत से अचानक आईने में झलकता अपना चेहरा यूं देख कर ऐसे में तू हट जा, मेरी उम्र है तो क्या, प्यार करने की एकदम सही उम्र है, प्यार करने की एकदम सही उम्र है।
দিদিদেরকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের বাবা মাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, যারা আমাদের এই স্যারেজেমের আপনারা সবাই এই স্যারেজেমের পরিষেবা নিচ্ছেন। তো আজকে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের যিনি নারীর মর্যাদা করো প্রভু, মঙ্গল নীতি জেনে, অন্ধকারে দূর চোখালোয় বন্ধ। তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মর্যাদা করো প্রভু। কাটে নিশীথ তাই গহে প্রাণ, তাই মান অভিমান, তাই এত হায় হায়। তাই কেটে কাটে নিশীথ তাই গহে প্রাণ, তাই মান অভিমান, তাই এত হায় হায়। প্রেমের সুখ দুঃখ ভুলে তবে সুখ পায়, প্রেমের সুখ দুঃখ ভুলে তবে সুখ পায়, সুখের লাগে জাগে প্রেম প্রেম। শশী ঘুমের মুহব নিয়ে গেল আস্তা চলো উনি নিউরো এবং স্পাইন সার্জন আপনাদের কাছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওনার মূল্যবান বক্তব্য দেবেন। আমরা এখন আমাদের ডেলিগেটসদের যারা গেস্ট এসেছেন তাদের মঞ্চে ডেকে নেব সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। আমি বিশাল আজকে আমাদের যে প্রোগ্রামে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা গেস্ট এসছে ওখানে এসছে, যাদের মাধ্যমে আমরা আজকে ইন্ডিয়ার মধ্যে স্যারাজেমকে আমরা 20 বছর কমপ্লিট করে নিয়ে যাচ্ছি। তো ইনারাই হচ্ছে সেই কর্ণধার, ইনারা আছে বলে আজকে অনেক অনেক স্যারাজেমের পরিবারকে সুস্থ করার সুযোগ আপনারা করতে পারছি। তার জন্য ওনাদেরকে আমরা সবাই আমাদের তরফ থেকে ওনাদেরকে উত্তরীয় করিয়ে বেশ করিয়ে সম্মান জানানো হবে। সবাইকে প্রথম হচ্ছে আমাদের জেডি স্যার আছে, যিনি আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে লিড করছে। সাইড এক সাইড করে আসো, এক সাইড করে সাইডে করে চলে আসো। তারপর আমাদের যিনি স্যার আছে এডি স্যার, মিস্টার অপূর্ব দাস। আমাদের যিনি ওনার আছে মিস্টার চন্দন স্যার। তারপরে যিনি আছে আমাদের মিস্টার দিব্যেন্দু স্যার, ওনাকে উত্তরীয় করানো হচ্ছে। প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম, একটা এক সাইড করে দাও যাতে ছবিটা সুন্দর করে আসে। হ্যাঁ, তো আমাদের টিঙ্কু ম্যাডামকে উত্তরীয় করিয়ে সম্বর্ধনা দিচ্ছে প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম। আর তার সাথে সাথে উত্তরীয় করিয়ে বেশ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের রমা ম্যাডাম। তারপরে যে ম্যাডামকে উত্তরীয় করানো হয়েছে উনি হচ্ছে আমাদের অমৃতা ম্যাডাম। তারপর আমাদের যে বেস করানো হচ্ছে টিঙ্কু ম্যাডামকে আমাদের রমা ম্যাডাম। তারপর উত্তরীয় করানো হচ্ছে আমাদের দেব স্যারকে। তারপরে তিনি আমাদের ওনার নাম হলদিয়া স্যারের নাম রফিকুল স্যারকে উত্তরীয় করানো হয়েছে প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম। তো রমা ম্যাডাম আমাদের পরপরকে বেস করানো হচ্ছে। তারপর আমাদের উত্তরীয় করানো হচ্ছে আমাদের মশিউর স্যারকে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনারা পার্টিসিপেট করেছেন। তারপর আমাদের যাকে উত্তরীয় করানো হয়েছে আমাদের ম্যাডাম। তারপরে যে ম্যাডামকে উত্তরীয় করানো হচ্ছে আমাদের প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম। আর তার সাথে সাথে বেস করানো হচ্ছে আমাদের রমা ম্যাডাম। এবার আমাদের উত্তরীয় করানো হচ্ছে আসিফ স্যারকে। আপনারা সবসময় হাততালি দিতে থাকবেন। আপনারা হাততালির মাধ্যমে ওনাদেরকে আমরা ওয়েলকামটা সুন্দরভাবে করাতে পারবো। আমাদের ন্যাশনাল 정보를 한탕 골랐어요. রেডি
সবাই ধন্যবাদ সমস্ত সেরাজিমের যারা অফিসিয়াল আমাদের অনুষ্ঠান খুব ভালো মতোই এগিয়ে চলেছে। আমাদের যারা গেস্ট তারাও সমস্ত এসে গেছেন। এবার একটু মনোরঞ্জনের পালা। আমি মঞ্চে अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और आने वाले लाइफ को आप अच्छे से बिता सकते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। अगर मैं स्पाइन के बारे में बात करूं, आजकल जितने भी बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जो आसान शब्दों के इस्तेमाल करते हैं कि लोग अच्छी तरह उनको याद रख सके और उसी के बारे में बोल सके। तो वैसे भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पाइन डे को याद रखने के लिए वो डिफरेंट साल में अलग अलग से पंचलाइन तैयार किया था। अगर मैं 2020 से 2022 तक आपको याद दिलाऊं तो उसमें लिखे हुए थे एवरी स्पाइन काउंट्स। इसका मतलब जो आपका रीढ़ की हड्डी है সকাল থেকে আপনারা সময় দিয়ে আসছেন, সেরেজিয়াম সেন্টারে আপনারা সময় দিচ্ছেন এবং এখানেও আপনারা আজকে যে ইম্পর্টেন্ট যে আজকে আমরা স্যারকে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি, হ্যাঁ কি না? থ্যাংক ইউ সো মাচ। नमस्कार। आवाज आ रही ना वहाँ पीछे तक? पहली चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, पश्चिम बंगाल में बुलाने के लिए और सिराजिम के इस उत्सव में मुझे गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा करें। क्षमा করে আমি বাংলা ভালো জানি না। चलेगी हिंदी चलेगी? धन्यवाद। ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल बंगाली नहीं आती। मेरे पिताजी को रवीन संगीत का बड़ा शौक था, मैं पैदा उसी के साथ हुआ हूँ। तो आप वाली बड़े लोगों ने सुना है। इसी तरह से पारोश मंगी छुआओ पुराने घूमने गारो दाहोन दाने। सही बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, चलेगा। और एक बदमाशी भी आती है बंगाली में मुझे। जब लड़के 10वीं क्लास तक पहुंचते हैं ना तो एक इच्छा होती है गर्लफ्रेंड बनाने की। हम भी 10वीं में पहुंचे तो अब दिल्ली में तो सब जगह के लोग हैं, बंगाल के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, पंजाब के भी हैं। पता नहीं किस लड़की से दोस्ती होगी, पता ही नहीं। तो हर भाषा का एक एक सेंटेंस मैंने सीख लिया था, एक वाक्य सीख लिया था, आमी तुम्हाके भालोबाशी। तब तो नहीं मैंने प्रयोग में लाया, तब मैं उसको प्रयोग में नहीं लेकर, मेरे ख्याल से आज अच्छा मौका है कि मैं कहूँ आमी तुम्हाके भालोबाशी। थोड़ा बोलने में गलती होती है, वो शैली नहीं आएगी मुझे जो असली बंगला में होती, लेकिन आई थिंक मतलब समझ में आ गया हो। सबसे अधिक जो मुझे लाभ हुआ है सिराजिम से, मुझे अपने देश के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। आप मेरा सौभाग्य समझिए
लेके और चेन्नई तक, जयपुर से लेके और पश्चिम बंगाल तक अब जो है मैं भारत के हर हिस्से में भारतीयों से मिला हूँ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात, मेरे लिए सौभाग्य। तो अगर आपको कहीं मेरी हिंदी में गड़बड़ लगे या समझ में ना आए तो वहीं रुकवा दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि उसको साधारण कर दूं, आसान कर दूं। पहले 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे डॉक्टर लोग भी होंगे, कुछ एक हैं डॉक्टर यहाँ पे? डॉक्टर लोग कोई नहीं है? अच्छा चलो, अंधों में काना राजा है। तो जो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं कोई बहुत बड़ा स्पाइन में आप लोगों को ऐसा ज्ञान नहीं देने वाला जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है या साइंस में नए नए चीजें आ रही हैं। और साइंस के अलावा सारी बात करूंगा, मुझे भी नहीं आती ज्यादा साइंस। लेट्स बी क्लियर। तो अच्छा तरीका यही रहता है, मैंने देखा अनुभव मेरे से बहुत ज्यादा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि वो ज्ञान बाहर आ जाए। तो ये अपेक्षा ना करिएगा कि मैं कोई बहुत बड़े ऑपरेशन के बारे में और स्पाइन के बारे में और ऐसा वैसा बताने वाला हूँ। साधारण बातचीत करेंगे, उसी से हमको लाभ होगा, उसी से हमारी स्पाइन और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो पहला सवाल, अच्छा हाँ एक चीज और बता दूं, अभी जब यहाँ वो केक काटा जा रहा था और जब वो मुझे टीका लगाया गया तो महिमा दी ने मुझे वो थाली से ऐसे घुमाने की कोशिश करी, करते ना ऐसे, तो मैंने उनका हाथ रोक दिया था। मैं आपको कारण बताता हूँ, आज से 40 साल पहले भी किसी ने करा था ऐसे मुझे, अभी तक भुगत रहे, इसलिए मना कर देता। दूसरी चीज, मुझे यहाँ आके एक पुराना अनुभव याद आ रहा है जब मैं चेन्नई गया था। भारत में सबसे बुद्धिमान हमारे देश की महिलाएं हैं। पुरुषों को बुरा लगे तो लगता रहे। अभी कारण बताता हूं क्यों है सबसे बुद्धिमान। हमारी सहस्त्रों शताब्दियों की संस्कृति है, मतलब पता नहीं 12,000 का तो लिखित रिकॉर्ड है काशी का कि, लेकिन पहले पूछो तो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप लोग सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम स्पाइन के बारे में बोले। पहले स्वास्थ्य समझ लें तो दोनों जगह का खाता हूं। तो हम बात कर रहे थे कि सर्दियां आने वाली, बंगाल का ही आदमी सर्दियों में अच्छी तरह से गर्द भोजन करता है, हाँ? खूब मिष्टी, खूब मछली, ये वो। क्या वही भोजन आप जून में कर सकते हैं? गर्मी में नहीं कर सकते। और गर्मी में जो आप दाल खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, क्या वो खा के आप सर्दी में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बंगाल में, उत्तर भारत में, तमिलनाडु में सब जगह सब्जियां बहुत मिलती हैं। लेकिन आइसलैंड का नाम सुना होगा, आजकल ट्रम्प जो है उसको लेने के चक्कर में है आइसलैंड को। तो आइसलैंड में तो सिवाय बर्फ के और समुद्र के कुछ है ही नहीं, वहां हरी सब्जी आएगी कहाँ से? क्योंकि जब भी मैं पूछता हूँ सब लोग कहते हैं पौष्टिक भोजन माने हरी सब्जी। तो वहां पे हरी सब्जी कहाँ से आएगी? उनको तो वही वो मछली खानी पड़ेगी। तो इसका विटामिन डी कैल्शियम, विटामिन डी कैल्शियम, लेकिन विटामिन डी कैल्शियम तो जाके हड्डी पे चिपकेगा ना। लेकिन जब वहां पे हड्डी नहीं होगी, प्रोटीन ही नहीं होगा तो चिपकेगा काय पे? तो पौष्टिक भोजन का अनुपात भी ठीक होना चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं है तो आप 5 किलो कैल्शियम खा लो और 15 किलो विटामिन D3 खा लो। जब वहां प्रोटीन ही नहीं है तो चिपकेगा काय पे? तो आपकी हड्डी तो स्वस्थ नहीं होगी। ठीक है, तो स्वस्थ हड्डियों के लिए, स्वस्थ स्पाइन के लिए दोनों चीजें चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और कैल्शियम और विटामिन भी चाहिए। अब तो मैग्नीशियम भी आ गया कि मैग्नीशियम की भी आवश्यकता है। तो हर चीज, कोई चीज आप एक अलग होके नहीं देख सकते, आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि हम तो सिर्फ कैल्शियम खाए जाएंगे, विटामिन डी की हड्डी ठीक हो जाएगी।
या हम सिर्फ पौष्टिक भोजन लेते रहेंगे हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार जब 6 महीने खड़ी रही तो चली नहीं। चाहे उसमें आप जितना अच्छा 98 ऑक्टेन का भी तेल डलवा दो, लेकिन चलेगी नहीं। तो भगवान ने उसको चलाने के लिए बनाया है, तो उसको चलाएं और उसको पौष्टिक भोजन दें ताकि वो स्वस्थ रहे। ठीक है? स्वस्थ रहने के लिए, शरीर के लिए भी और स्पाइन के लिए भी पौष्टिक भोजन चाहिए, चलायमान जीवन शैली चाहिए कि जिसमें आदमी चलता रहे, काम करता रहे। ठीक है कि नहीं? अब लोग, कुछ लोग बाद में मेरे से पूछने लगे कि साहब मेरी तो उम्र 70 साल हो गई है, अब एक्सरसाइज करके क्या फायदा? लेकिन एक कहावत है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ठीक है ना? तो किसी बनारस से पंडित को बुला के मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन से शुरू हो जाओ अच्छे स्वास्थ्य से, तभी से आदमी उसका ध्यान रख सकता है। असली है। तो मतलब हमने 5 लाख रुपया खर्च करके गहना खरीदा, साल में एक बार पहना और 364 दिन उससे परेशान चिंतित रह के खो ना जाए, चोरी ना हो जाए। यही होता है ना? हमारे तनाव के की हाल के जो चोरी हो जाएगा, खो जाएगा, कोई खींच लेगा। लेकिन हम लोग अपने ऊपर पैसा खर्च सौंदर्य पे करते हैं, स्वास्थ्य पे नहीं करते। देवव्रत जी ने बोला कि इन्वेस्ट इन योर स्पाइन। गहना 5 लाख का साल में एक बार घर की महिला ने पहना, या हम लोगों ने उससे बहुत कम दाम की कोई ऐसी व्यवस्था करी जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, क्या होगा? घर का हर आदमी उसको ले सकता है। पौष्टिक भोजन अगर हम आज से बदल दें अपने घरों में तो सब लोग खाएंगे, रोज खाएंगे। तो मुझे नहीं समझ में आता कि पैसा जो है गहने पे खर्च करना चाहिए या जो है अच्छी चीजों में, स्वास्थ्य वाली चीजों में। आप लोग डिसाइड करो। उसके बाद हमारे यहाँ जब शादी होती है तो घर की महिलाएं कहाँ जाती हैं सबसे पहले? पार्लर। आपको पता है आजकल पार्लर का बिल कितना आता है एक बार का? साधारण पार्लर का 4-5 हजार, 10,000, 5,000। ब्राइडल में कम तो महंगे वाले तो मैंने सुना है 5 लाख तक ले लेते हैं, जो शादियों में बुला के क्या ब्राइडल नहीं क्या कहते हैं उसको, शादी जो कहीं और जाके की जाती है, डेस्टिनेशन शादी। डेस्टिनेशन शादी करेंगे, उसमें तो मेकअप करने वाली साथ में जाती है फर्स्ट क्लास से और वहां जाके मेकअप करती है। 5-5 लाख खर्चा अलग। और वो मेकअप कितनी देर तक सुंदर दिखाता है महिला? 6 घंटा, 7 घंटा। देखिए भाई, मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से भारतवर्ष की हर नारी सुंदर है, और संस्कृत में कहें तो हर नारी षोडशी है। षोडशी माने 16 साल की। ठीक है ना? तो हर महिला सुंदर है अपनी तरह से, हर महिला यंग है, 16 साल की। अब वो उसको रोगन जोश लगा लोगों के रोगन पेंट करके थोड़े समय के लिए लगता है कि अच्छी हो गई, गहने पहन के लगता और सुंदर हो गए। लेकिन मेरी शक्ल का फोटो अगर आप लेंगे, चाहे आप बॉक्स कैमरे से ले लो चाहे हैसलब्लाड से ले लो, 12 लाख के कैमरे से, शक्ल तो वही रहेगी मैडम, चाहे इसको आप सीधा रखो या उल्टा। तो जस्ट 5%, ज्यादा नहीं मांग रहा। इतनी चीजें आपको अच्छी बताई यहाँ पे लोगों ने, आचार्य साहब ने बताई, अभी और लोग भी बताएंगे। 5% सुन के भगवान असल में बहुत शातिर है। उसने एक कान यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, सीधा डायरेक्ट रास्ता यहाँ से सुनो वहां से निकालो, और दिमाग को थोड़ा ऊपर रखा है, तो उसमें बहुत कम जाता है दिमाग में सुनने वाली चीज। तो थोड़ा सा जरा जो आप लोग अगर प्रयास करें अपने जीवन में थोड़ा सा अपना बदलाव लाएं, तो शायद हम लोग का स्वास्थ्य सबका अच्छा हो जाए। चलिए, मैं यहाँ से गिरा, इंस्टिंक्टिवली मेरा क्या रिएक्शन होगा? पहला रिएक्शन क्या हुआ? नॉट फर्स्ट एड। करूंगा क्या? हाँ, सबसे पहले सहलाएंगे ना, ऐसे करके देखेंगे। मैडम आप थोड़ा ना सीरियस बात करने लगी। मैं बहुत मंदबुद्धि आदमी, मैं बहुत छोटा सा मालूम। सबसे पहला सहलाऊंगा, उसके बाद
गिरा हुआ होऊंगा तो सबसे पहले हड्डी चला के देखूंगा, जोड़ चला के देखूंगा, भाई हड्डी तो नहीं टूट गई कहीं, यही ना कि हड्डी चला के देखूंगा, हड्डी पट्टी तो नहीं टूट गई। मान लो हड्डी नहीं टूटी, जोड़ नहीं तो मेरा खड़ा होने की कोशिश करूंगा, भाई खड़ा हो गया। उसके बाद शायद मैडम से रिक्वेस्ट कर दूं कि मुझे घर तक पहुंचा दो या हॉस्पिटल पहुंचा दो या जो भी है। और क्या करूंगा? मान लीजिए हॉस्पिटल लायक चोट नहीं है, और क्या करूंगा? मान लो घर पहुंच गए, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? बर्फ देवो और की देवो? गरम जल 24 घंटा बाद, पहले बर्फ। एक्सरसाइज सरकार माफ करे। आप हरियाणवी समझते हैं? नहीं ना, हिंदी समझते हैं। मैं बावड़ा नहीं हूँ, समझे ना, बावला नहीं हूँ मैं कि एक्सरसाइज करूंगा चोट लगने के बाद। हाँ, और क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पेशेंस के साथ सर की बात आप लोगों ने सुने, इसलिए आप लोगों को थैंक यू कि 1 घंटे 15 मिनट सर ने बोले। आप लोग इनकी बात पे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैंने नोट कर रहा था उन्होंने क्या क्या बोल रहे हैं। अभी मेरी बात तो समझ में आ रही ना? नहीं नहीं, अभी तुम इधर आओ। क्योंकि 2-4 किसी मेंबर ने आके कह रहे कलकत्ता में बोल रहे, वेस्ट बंगाल लैंग्वेज में बोलते तो और अच्छा होता। देखिए साहब, मैंने पहले ही आप लोगों से क्षमा मांग ली थी, मुझे बंगला नहीं आता। इतनी जल्दी मैं बंगला सीख नहीं सकता, क्या करूं? और अब तो बड़ा हो गया, अब तो गर्लफ्रेंड भी नहीं रह जानी है कि मैं सीख लूंगा। अब तो कोई चांस भी नहीं है बंगला सीखने, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा बहुत पूछ पे निकाल को शब्द मैं बोल लेता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। जो चीफ गेस्ट को यहाँ पे बुलाए थे, আর এর সাথে সাথে আমাদের এমডি স্যারকেও আমরা একটা ছোট ক্ষুদ্র উপহার, এবার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল 3 এরিয়ার কিছু আমাদের ওনারা কিছু বুকে স্পাইন পিকচার তো या तो आप लोग आज समझ गए और स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो इसी स्पाइन का ऑपरेशन करने के मैं 4 लाख रुपए लेता हूँ। স্যার কি বলেছে বুঝতে পেরেছেন? স্যার বলছি আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন স্পাইন কি ইম্পর্টেন্ট আছে। তাহলে আমি এই অপারেশনের জন্য 4 লাখ টাকা নিয়ে নিই কিন্তু। তো আজকে আমাদের এখনই